A very good morning to all of you. Honorable Speaker of the Day, Sri Virendra Rawatji, founder Green School and Green University. Honorable Principal Sir, Professor Rajesh Mishra, Dean of Instruction. Esteemed Dean of Instruction, Professor Ayushman Goswami. Esteemed colleagues and dear students. I take this privilege to invite esteemed scholar Sri Virendra Rawatji. It's a privilege for us to have you here for the extension lecture. This extension lecture of eminent educationists, this is the series of organized by the Department of Extension Education, and in this series we used to call the eminent educationists, especially on the various areas. And for this year, we have taken the issues related with the orientation for professional development. And on this extension series, today we will have a lecture on green schools, that is for responsible education for sustainable education. This extension lecture is organized basically for the faculty and staff of the Regional Institute of Education along with our students, and we cater the educational needs of the 10 states and UTs of the northern region. And we have for the first time we are organizing this program in the blended mode. We have the representatives of the 10 states and UT, and the students, they are joined with us in the virtual mode, as well as the faculty and some of the students. We are joining it in the face-to-face mode. This particularly program is organized to enlighten the students and faculty to provide the academic interaction with the eminent educationists, and that is highlighted in the National Education Policy 2020. So we welcome you, sir, to found you among us, and we thank you to accept our offer to be here. So हम यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में के अंतर्गत जो 10 स्टेट्स हैं उनमें आता है और राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान में हमारे यहाँ जो अतिथि हैं उनको बुलाते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि पधारो साहब। और इसी कड़ी में सर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं संस्थान के प्राचार्य महोदय और डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉक्टर राजेश मिश्रा सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के वक्ता से हमारा परिचय करें। प्लीज सर। संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम बाबू पारिक जी, प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी जी, प्रोफेसर आनंद आर्या जी, हमारे सभी सहयोगीगण और विद्यार्थियों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र रावत जी हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। न सिर्फ एक पर्यावरणविद बल्कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनका परिचय कराना मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी और उनकी उपलब्धियों का जो ब्यौरा है उसको देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। और ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद आज का पूरा वक्त उसी में निकल जाए, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री वीरेंद्र रावत जी is the originator of Green School and Green University. He has addressed the Harvard University and United Nations on Sustainable Practices in Education.
He is also a member of the Harvard Extension Environmental Club of Harvard University. He was invited as observer for the United Nations high-level meeting of the General Assembly to commemorate International Day for the total elimination of nuclear weapons in 2017, 18, 19, and fourth session of UN Environment Assembly Kenya in 2009. He has addressed many national and international conferences on sustainable practices in education. Mr. Rawat is a mentor of Climate Reality Leadership Corps, headed by Al Gore, former Vice President of the United States of America. He is also a member of Atal Tinkering Lab Initiative for Schools of Niti Aayog, Government of India. He is the recipient of the Advait Foundation Leadership Award headed by N.R. Narayanan Murthy, founder of Infosys. He is also recipient of the UNGA Conference Award 2019 for his contribution towards promoting UN SDG. He is also recipient of the Green Difference Award 2016 conferred by Honorable Speaker of the Massachusetts House of the Representatives, Boston, USA. He has mentored IIT Bombay Tech Fest 2015 and the Green School Project of the Government of Gujarat. Mr. Rawat is the National Coordinator of India for the US High School Diploma offered online by ASUPD, Arizona State University of the Indian Students. He is also Regional Coordinator for Gujarat, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli of National Testing Agency, Government of India. He was a jury member of the Clean and Smart Campus Award of the AICT, Government of India. He has authored postgraduate diploma in green teaching offered by Indus University. Mr. Rawat is also director of CalArts Education and Research Foundation that operates more than 40 schools in pan-India. He is also mentoring a United Nations project of All India Council of Technical Education, Ministry of Education, Government of India. He is an expert member of UNESCO for technical and vocational education and training. Beside this, Mr. Rawat is the founder director of Green Mentor, a non-governmental sustainable and responsible education solution provider organization having a special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations. He has transformed more than 1,000 conventional schools and universities into green schools and green universities in Asia, America, and Africa. Sir, on the behalf of NCERT and on the behalf of this institute, I welcome you in this institute, and I am very much thankful for this to provide us. You provide us for your valuable time. So thank you. थैंक यू सर हमारे स्पीकर का हमसे परिचय कराने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपने जो हमारे समाज के स्पीकर हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सर ने हमारा जो थीम पार्क है वो भी विजिट किया है और इंस्टीट्यूट में जो भी हमारे ग्रीन इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उनको देखा है
हम चाहेंगे सर कि हमारा जो कैंपस है किस तरीके से और हम अच्छी चीजें कर पाए, थोड़े से आप जो अपने सेशन के साथ साथ अगर वो आप बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज सर, यू आर वेलकम। Thank you very much, sir, for kind introduction. Respected principal, sir, deans, professors of this institute, and students and colleagues. मेरे जैसे इंट्रोडक्शन कराया गया है, I work in the sustainable education. लोग ये मानते हैं without responsible education, you cannot build a responsible education. लोग उत्तरदायी शिक्षा नहीं लागू करेंगे तो लोग उत्तरदायी समाज, उत्तरदायी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो आज मुझे जो बुलाया गया है इस संस्थान में to speak on the so green school जहाँ तक महत्व है वो प्रकृति और संस्कृति को शिक्षा में लाने का एक प्रयास है, उसको ग्रीन स्कूल बोला जाता है। सामान्य शब्दों में ग्रीन स्कूल की परिभाषा यही है। अब ये है कि ग्रीन स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हमारे स्कूल ग्रीन नहीं, तो उनको जरूरत पड़ी। ओके, और ग्रीन करने से फायदा क्या होगा? हमारी जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बाहर है। हमारा जो समाज है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बाहर है। इसमें गुरु सुप्रीम होता है और गुरु के बाद आती प्रकृति, प्रकृति के बाद आती संस्कृति। तो अगर हमने गुरु और संस्कृति और प्रकृति को शिक्षा में ला दिया तो हमारी शिक्षा को संपूर्ण माना जाता है। कई बार अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको उसके पूछताछ करने पड़ती है। अब ग्रीन स्कूल का जो धारणा ये है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्थानीय वातावरण में कम से कम प्रभाव हो, वैसा प्रभाव जीरो हो, लेकिन अगर हो तो कम से कम, क्योंकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे लोकल एनवायरनमेंट में पड़ता है। और स्कूल भारत के भी किसी देश के हर कोने में उपलब्ध है। अगर हम लोग शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के जो पड़ने वाला प्रभाव को कम कर सकते हैं तो उससे सस्ता उपाय क्लाइमेट चेंज को फेस करने का कोई नहीं है। अब ग्रीन स्कूल की या इको स्कूल की परिकल्पना क्यों की गई? क्योंकि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से पीड़ित है। हर जगह अतिवृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, आग लग रही है, सब कुछ हो रहा है। डेंगू आ रहा है, पैंडेमिक आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग अपनी प्रकृति के साथ जो हमें जवाबदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो कहीं कुछ आतंकवाद हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ रहा है, मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। उसके कारण हमारे निर्णय प्रकृति के अनुरूप नहीं होते हैं। प्रकृति के अनुरूप न होने के कारण प्रकृति हमको अपने प्रभाव का शिकार बनाती है। सो हमारा ये मानना है कि विश्व में कोई भी समस्या हो, हर चीज का समाधान शिक्षा व्यवस्था में, हर चीज का समाधान, चाहे वो एटम बम बनाने को रोकना हो, चाहे युद्ध को रोकना हो, चाहे समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उससे निजात पाना हो, हर चीज का समाधान शिक्षा व्यवस्था में। और शिक्षा व्यवस्था को अगर हम लोग प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप करेंगे तो हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा संस्कृति बना पाएंगे। वो बच्चे चाहे कल पॉलिटिशियन बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, डॉक्टर बने या इन्वायरमेंटलिस्ट बने, इंजीनियर बने, वो कभी भी कोई भी निर्णय प्रकृति के खिलाफ नहीं है। तो जब हमारा निर्णय प्रकृति के खिलाफ नहीं होगा तो प्रकृति हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हम लोग अपने बच्चों को अपने से अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आज हमें ये चिंता है कि जिस स्थिति में हमारे पूर्वजों ने, मेरे पिता ने मेरा घर, जमीन, बार जो मुझे दिया है, क्या मैं उसी स्थिति में अपने बच्चे को दे सकता हूँ? शायद नहीं। आज ये है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य रिस्क पे, तो आज हमको जागना ही पड़ेगा। और उसका सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है
उत्तरदायी शिक्षा, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन। रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन का मतलब है जहां स्कूल, यूनिवर्सिटी बच्चे के भविष्य और स्थानीय पर्यावरण के भविष्य की जवाबदारी ले सकते हैं, राइट। जब हमारा स्कूल और यूनिवर्सिटी हमारे भविष्य की जवाबदारी लेगी तो मुझे आशा है कि हमारी चिंताएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और जब हमारे शिक्षा संस्थान स्थानीय वातावरण की या पर्यावरण की जवाबदारी लेंगे तो हमारी बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की समस्या कम हो जाएगी। ये बात सही है कि भारत का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में बहुत कम है, हमारा कार्बन एमिशन रेशियो और देशों से काफी कम है, पर इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं, जो है हमें उतने को कम करना है। और जिस देश में ज्यादा हो रहा है उस देश में जाके वहां के लोगों को भी समझा के कम करना। तो आज भारत की सबसे बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आज भारत का सुवर्ण काल चल रहा है। भारत को सबसे ज्यादा विश्व में समझा जाने लगा है, सबसे ज्यादा इज्जत दी जाने लगी है और सबसे ज्यादा उनकी समस्याओं का समाधान पूरे विश्व के लोग भारतीयों से करने लगे। तो जब लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो हमें भी अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग जवाबदारी कब लेंगे? जब हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी। तो हमें अपनी शुरुआत अपनी शिक्षा व्यवस्था से करनी पड़ेगी। हमें इस बात का गर्व है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज का पूरा समाधान भी है, प्रावधान भी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमको प्रकृति और संस्कृति दोनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, जो शायद पहले कम थी। तो हम लोग अभी ग्रीन स्कूल पे आते हैं कि ग्रीन स्कूल क्या है, वो ग्रीन स्कूल की जरूरत क्यों है। ये तो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा इंट्रोडक्शन है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन मेंटर, ये यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज है। हम लोग 40 से ज्यादा देशों में काम करते हैं। हम लोग मोस्टली पॉलिसी इंटरवेंशन, जो लोग हर देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना या उसमें हमारे मंतव्य देना, उनके लिए काम करते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग ग्रीन स्कूल और ग्रीन यूनिवर्सिटी का ऑडिट करते हैं, उनको एक्रीडेट करते हैं। हम लोग एक्रीडेटिंग एजेंसी भी है एंड वी एक्रीडेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एंड वी वर्क मोर देन 40 कंट्रीज में, तो कम लिखा है, और मोर देन 10 मिलियन स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ग्रीन स्कूल में आप प्रेजेंटेशन देखते होंगे, स्लाइड छोटी है, पर ग्रीन स्कूल का मैं बता दूं कि स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कार, स्थानीय खेलकूद, स्थानीय पर्यावरण, इन सबको मिला अगर कोई शिक्षा व्यवस्था है तो उसको ग्रीन स्कूल, जहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों के का संचयन होता है, दोनों की रक्षा की जाती है, दोनों का इंक्लूजन किया जाता है, उसको ग्रीन स्कूल बोलते हैं। ग्रीन स्कूल का मतलब है स्थानीय पर्यावरण में कम से कम प्रभाव करना। हम लोग जो भी प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हैं, माना हवा, ऑक्सीजन जितना भी हम लोग इनहेल करते हैं, लेते हैं, उतना हमको प्रोड्यूस, वैसे तो उससे ज्यादा करना चाहिए। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके कैंपस में इतने ज्यादा वृक्ष है कि आप बहुत सारे और लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी नहीं है, राइट। तीसरा जो जल है, प्राकृतिक संसाधन का दूसरा नाम है जल। जल जो है प्रकृति आपको देती है बरसात के रूप में, और सबसे शुद्ध होता है। तो वो जल जो है आपको, अगर प्रकृति आपको देती है तो आपको उसको उपयोग करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर जाने देते हैं, फिर वो कहीं नदी और डैम में चला जाता है, फिर जहां वो जल रुकता है वहां से पाइपलाइन से आपके घर में दोबारा आता है। तो जो चीज प्रकृति आपको दे रही है सामने से, तो उसका संरक्षण करना तो आपकी जवाबदारी है। हमारे संस्कारों में कहा गया कि जब लक्ष्मी घर में आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, जब बारिश आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। हम लोगों का जो केजी में एक पोयम पढ़ाते हैं हमारे मॉन्टेसरी मीडियम के स्कूल वाले लोग होते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर रेन, ये केजी में पढ़ाया जाता है। अब रेन तो बरसात में एवरीडे नहीं होती, राजस्थान में तो एवरीडे नहीं होती, फिर भी हम लोग उनको पढ़ाते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमको ऐसा सिखाया है।
लंदन में हर दिन बारिश होती है, तो इसलिए वहां के शिक्षक पढ़ाते हैं कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। हमारे यहाँ तो क्या पढ़ाया जाना चाहिए, बरसों रे मेगा बरसों रे, तो ऐसा हम लोग नहीं पढ़ाते। तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं, रेन रेन गो अवे। तो बच्चा हमसे पूछता है कि टीचर रेन है कहाँ, आएगी तो जाएगी ना, अब जब रेन आएगी तो जाएगी कहाँ से। पर कभी हमने इसको गंभीरता से नहीं सोचा कि हम लोग ऐसा क्यों पढ़ा, क्योंकि उसका राइम अच्छा बनता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, तो लोग पढ़ा लेते हैं। तो उसी को हमको बदलना। जब यहाँ पर बरसात नहीं होती तो बरसों रे मेगा बरसों रे ही पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग नहीं पढ़ाते। इसलिए बारिश का पानी जब भी आपको मिले उसका स्वागत करें, उसको संरक्षित करें, उसका सही उपयोग करें, उसका दोबारा उपयोग करें। फिर इसका मतलब आप म्युनिसिपैलिटी से पाइप वाटर पे डिपेंडेंट नहीं। हमारी सरकार का ये प्रावधान है कि हर घर में नल से पानी जाए। अब सरकार को क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो घर वाले हैं वो जल का संरक्षण नहीं करते, इसलिए सरकार को देना पड़ता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। हो सकता है वो शुद्ध भी ना हो, लेकिन आपके बरसात का जल से शुद्ध तो दुनिया में कोई जल हो नहीं सकता, तो क्यों ना उसको उपयोग किया जाए। तीसरा आपकी बायोडायवर्सिटी, जो आपके पशु पक्षी है, रेप्टाइल है, पक्षी कितने कैंपस में कितने आते हैं, क्या वो हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर जब तक वो संरक्षित नहीं होंगे तब तक हम संरक्षित नहीं। कोई भी पशु पक्षी बायोडायवर्सिटी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे जीवन के पूरक। हमें उनको संरक्षित करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जब हम लोग अपने जीवन में सब अपनाते हैं तो हम लोग ग्रीन करते हैं। ग्रीन का मतलब कोई पेड़ लगाना नहीं, ग्रीन का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर विद द नेचर। मानव का जो व्यवहार है वो प्रकृति के प्रति प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको नमस्कार भी करते हैं, एक गिलास पानी भी देते हैं, हमारे संस्कार होता है। तो हम लोग ऐसा प्रकृति के साथ नहीं कर सकते। तो हमें प्रकृति का उचित सम्मान जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रकृति के प्रकोप का शिकार बनते ही रहेंगे। एंड उसका जो है उपयोग, उसके जो शिक्षा है वो स्कूल व्यवस्था में दी जानी चाहिए। दूसरा हमारा ये मानना है कि हम लोग स्कूलों में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ये बताती है कि 22 वर्ष की उम्र के बाद आप किसी की भी आदत नहीं बदल सकते। 22 वर्ष आफ्टर एज ऑफ 22 वी कैन नॉट चेंज द हैबिट ऑफ एनीवन। जो उसकी प्रकृति बन गई वो फिर परमानेंट है। कुछ हफ्ते 10 दिन के लिए कोई बदलता है, जैसे कई लोग योगा करते हैं, एक हफ्ते के लिए कर देते फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग कहीं जाते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा है, फिर हफ्ते 10 दिन के लिए करते हैं फिर नहीं करते, क्योंकि हमारी आदतें 22 वर्ष के बाद नहीं बदलती। तो अगर हमको बदलना है तो जो बच्चे 22 वर्ष की उम्र के कम हैं उन्हीं को शिक्षित करके हमको देश को नई व्यवस्था का क्या नाम हम लोग व्यवस्था के रूप में उनको दे सकते हैं। अगर आप एक इमेजिन करो कि अगर एक पेड़ से आपको वाईफाई सिग्नल मिलता तो आप कितने पेड़ लगाते? बहुत लगाते हैं ना। लेकिन पेड़ से क्या मिलता है तो हम लोग नहीं लगाते क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। तो वाईफाई सिग्नल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे ऑक्सीजन? तो हमें ऑक्सीजन का पहले ध्यान रखना चाहिए। वाईफाई आज ही मिलेगा तो कल भी हो सकता है। तो यही है कि ग्रीन स्कूल का मतलब वही है कि आपको प्रकृति के प्रति जवाबदार व्यवहार के लिए बच्चों को तैयार करना। We need to make a change maker, not test taker. ग्रीन स्कूल का मतलब टेस्ट टेकर बनाना नहीं, चेंज मेकर बनाना। हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था टेस्ट टेकर पे है, हर जगह टेस्ट। इंजीनियर बनना टेस्ट, आईएएस बनना टेस्ट, डॉक्टर बनना टेस्ट, कुछ भी बनना टेस्ट तो आपका हो गई। अभी तो किसी के घर में जाना तो अभी तो हम लोग अमेरिका जाते हैं, बोला आपकी रिपोर्ट दिखाओ क्या नाम है, वो भी टेस्ट दिखाओ। तो अब तो किसी के देश जाने के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है, राइट? सो आई बिलीव दैट वी बिलीव दैट वी नीड टू मेक चेंज मेकर, नॉट अ टेस्ट मेकर।
अब उसकी जो ग्रीन स्कूल के अनुरूप है, फर्स्ट एयर आती है और एयर को आप यू हैव टू प्रोड्यूस इट। अगर आपके पास शुद्ध हवा नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कार्बन कैप्चरिंग मशीन लगाओ, वो बहुत कॉस्टली आती है, लाखों रुपए में आती है, या तो पेड़ लगाओ। पेड़ आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और सीधा जमीन में ले जाता है। उससे अच्छा कोई सस्ता माध्यम नहीं है। तो अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध एयर चाहिए, तो मैक्सिमम प्लांटेशन इज कंपल्सरी। You have no right to borrow oxygen from the atmosphere. You have to produce more oxygen than you need. जिस दिन हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की समस्या खत्म हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन आप देखते होंगे, हमारे एक राजधानी है दिल्ली, उसमें कई बार बच्चों के लिए स्कूल को बंद करना पड़ता है। और दिल्ली में एक अच्छा मॉडल भी चल रहा है कि वो अच्छा मतलब हैप्पी स्कूलिंग का है। आप हम लोग दिल्ली वालों से पूछते हैं कि अच्छी बात है कि आपके हैप्पी स्कूलिंग है, लेकिन आपके यहाँ शुद्ध हवा भी होनी जरूरी है। तो दिल्ली वाले कभी अपने स्कूल का ऑक्सीजन इंडेक्स नहीं बताते या वाटर क्वालिटी नहीं बताते। बोले हम लोग अच्छी एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा टीचर भी होना चाहिए, अच्छा बेंच भी होना चाहिए, अच्छा कंप्यूटर भी होना चाहिए, लेकिन इससे पहले शुद्ध हवा, शुद्ध पानी बहुत जरूरी है। विदाउट क्लीन एयर वी कैन नॉट हैव क्लीन एजुकेशन। So, air must be clean in your campus, जहां भी आप रहें, चाहे घर में रहें, स्कूल में रहें, ऑफिस में रहें, राइट। हमने डिफिनेशन तो काफी तो दिया हुआ, पर मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ। देन द वाटर, हमारे पास पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी बहुत कम है। तीसरा, पानी बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। वी कैन नॉट प्रोड्यूस द वाटर, इज इट क्लियर? We can only manage the water, right? We have only option, हमारे पास दूसरी चॉइस ही नहीं। So we have to respect the water first, behave judiciously with the water. पानी के प्रति हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण होना चाहिए। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ की महिलाएं जब घास काटने जाती है जंगल में, तो बीच में नदी आती है, तो चप्पल उतार के नदी पार करती है। We respect so much water. वाटर हमारे यहाँ विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, हम लोग उनको इतना सम्मान करते हैं, तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारी शहर की महिलाएं शैम्पू करने में बहुत सारा पानी यूज करती हैं। इट पॉल्यूट योर ग्राउंड वाटर एंड एवरीथिंग। पानी आपको किसी भी रूप में 20 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, पानी पे हर गरीब का है, जो गरीब सड़क पे है उसको एक बाल्टी अवेलेबल नहीं है, और आपके शावर में तो काफी लीटर। हमें किसी और का हक का उपयोग करने की जरूरत नहीं। वी हैव नो राइट टू टेक अदर्स का पार्ट। दूसरे हक का पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। एंड वाटर बिलोंग टू एवरीवन। पानी और हवा ये धरती पे हर प्राणी का हक है, उसमें ऐसा नहीं कि हमारा हक है। हमें किसी दूसरे का हक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग को कॉलेज में जाते हैं तो हमारी खासकर जो कॉलेज की लड़कियां हैं, वो जब वो फेस वॉश करती है तो जैसे अपनी बिंदी ठीक करती है, तब तक पानी का नल खुला रहता है, तो काफी पानी, कम से कम 5 से 10 लीटर पानी चला। हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे कैद लगा देते हैं। तो जब वो लड़की बाहर आए तो उसको दिखाते कि बेटा तूने फेस धोया, तो ज्यादा 500 क्या नाम है या 1 लीटर से ज्यादा पानी उपयोग नहीं किया होगा, बिल्कुल सही। लेकिन जो वेस्ट गया वो 9 लीटर। तो हमें पानी का उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारी जरूरत है, क्योंकि पानी पे किसी और का भी। विदाउट क्लीन वाटर हम लोग गुड हेल्थ की अपेक्षा कर नहीं सकते। हम लोग अपने ग्रीन स्कूल्स में आरओ को इस्तेमाल नहीं करते। आरओ तो क्या है कि पूरे जो डस्ट के साथ साथ पूरे मिनरल को भी क्लीन कर देता है। तो आरओ आपको खाली H2O देता है, इसलिए वो लोग H2O लिखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे H2O। लेकिन पानी का मतलब है लॉट ऑफ मिनरल्स। तो हम लोग हमारे स्कूल में करते हैं, पानी को जो है जो उसका शुद्धिकरण करते हैं, चारकोल, चूना और मिट्टी, तीनों से फिल्टर करके पानी आता है। फिर उसमें डस्ट भी निकल जाता है
और बैक्टीरिया दूर करने के लिए उसको सोलर हीटर में गर्म कर देते हैं, वो सबसे शुद्ध पानी हो गया। और कोई पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जो पावर इस्तेमाल हुआ वो भी सोलर पे। तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, राइट। सो हमको जल का अगर शुद्धिकरण करना है तो हमारे आरओ में वेस्ट पानी ज्यादा होता है, पीने लायक कम मिलता है, राइट। तो हमें जितना हो सके जो प्राकृतिक वे है ना पानी को शुद्ध करने के, उन्हीं को अपनाना चाहिए। एनर्जी, एनर्जी तो आप सब जानते हैं, ये सब लाइट जल रही है। अगर ये एनर्जी कोयले से बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है? हमारे अंदर जा रहा है, ओके, और नहीं जाता। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पावर प्लांट से होता है, इट गोज इनसाइड अस। फिर हमारा मेडिकल का बिल ज्यादा आता है। इट कॉस्ट, दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है, इट कॉस्ट एवरीवन, राइट। सो हमारे पास ऑप्शनल है कि हमको रिन्यूएबल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हवा अच्छी है तो विंड करना चाहिए, अगर सोलर अच्छा है तो सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपके पास वेस्ट ज्यादा है तो बायोगैस का करना चाहिए। तो जितना हो सके हमको कोल बेस्ड एनर्जी पे मिनिमम क्या डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ताकि हमारा इमिशन कम से कम हो सके। अब तीसरा है कि उपयोग करें, जुडिशियस उपयोग करें। हम लोग स्कूल चलाते हैं सर, तो स्कूल में स्टाफ रूम होता है, जब बच्चे आते हैं माने एक क्लासरूम, तो जो बच्चा पहले आ गया वो सारे स्विच ऑन कर देते हैं, राइट। और बच्चे आधा घंटे बाद आते हैं, तब तक वो पंखे चलते रहते हैं। अगर उसमें जहां वो बच्चा बैठा है उसी पंखे को अगर स्विच ऑन किया जाए तो बहुत सारी बिजली को हम लोग बचा सकते हैं। स्टाफ रूम में भी यही होता है कि एक टीचर पहले आए, उसने सारे स्विच ऑन कर, हमें ऐसा उपयोग करना चाहिए जहां हमको ऊर्जा की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और खासकर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षिक संस्थान है, वो डे लाइट में काम करते हैं। तो हमारा डे लाइट फैक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि लास्ट बच्चे तक नेचुरल लाइट जानी चाहिए। कम से कम एक क्लासरूम में 12 का फॉन्ट, जो बुक में किताब में आते हैं आपकी, उसमें 12 का फॉन्ट होता है, उसको पढ़ने के लिए कम से कम 300 लक्स, जो फिजिक्स के विद्यार्थी उनको पता होता है कि लक्स क्या होता है, 300 लक्स लाइट होना कंपल्सरी है। अगर उससे कम है तो आपका लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट। इसी तरह से जो साउंड कंफर्ट है, साउंड कंफर्ट भी एकदम हमारे क्या होता है कि हमने पूरी वॉल को पेंट कर दिया होता है, राइट, और बाद में कांच लगाए होते हैं, तो ये जो भी मेरी वॉइस जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो साउंड ऑब्जर्वेंट इसमें ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारे क्लासरूम में नहीं लगे हुए। हम लोग क्या करते हैं, जो अंडे की ट्रे आती है उसको सीलिंग पे लगा देते हैं, तो आपके साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपकी आवाज लास्ट बच्चे तक क्लियर जाती है। तीसरा, थर्मल कंफर्ट। थर्मल कंफर्ट का मतलब है कि आपके क्लासरूम का तापमान बाहर के तापमान से 2 डिग्री कम होना चाहिए, तो आपके बच्चों को गर्मी नहीं लगे, और क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। तो वो अगर आपका मेंटेन करते हैं तो आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं। सो वेयरएवर यू गो, चाहे आप राजस्थान में है, तमिलनाडु में, कहीं भी है, योर क्लासरूम टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 2 डिग्री फ्रॉम द आउटसाइड टेम्परेचर एंड यू विल बी कंफर्टेबल। अगर उससे ज्यादा है तो थर्मल कंफर्ट होगा, थर्मल कंफर्ट नहीं होगा तो लर्निंग आउटकम नहीं आएगा। तीसरा, कई बार हमारे क्लासरूम के साइज बहुत छोटा होता है और हाइट बहुत छोटी होती है, 6-7 फीट होती है, 8 फीट कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो 9-10 फीट के क्लासरूम होते हैं हमारे जो ओल्ड स्कूल है। अब माना इसमें 60 बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड सीलिंग पे जाता है और धीरे धीरे जैसे उसका लेवल नीचे आ जाता है, आंखों के लेवल पर आता है, तो आपके आंखों में इचिंग शुरू होती है, फिर बच्चे इधर उधर हिलते हैं, तो उसको टीचर को लगता है कि बच्चे जो है इंडिसिप्लिन है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बच्चे को हर्ट करता है। तो जब तक आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिलो द आई लेवल आ जाता है तो लर्निंग आउटकम पे इम्पैक्ट, राइट। तो ये तो हो गई एनर्जी।
अब है आपके टॉयलेट। हमारे यहाँ टॉयलेट की भारत में सबसे बड़ी समस्या है और हम लोग टॉयलेट को कम महत्व देते हैं, साफ सुथरा भी नहीं रखते। हमको लगता है ये किसी और का काम है। अगर आपको स्वच्छ टॉयलेट चाहिए तो आपके बाद जाने वाले को भी स्वच्छ चाहिए। हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन क्लीन नहीं करते। तो हमको टॉयलेट को यूज भी करना है और क्लीन भी करना है। जब तक हम लोग क्लीन टॉयलेट नहीं होंगे तब तक जो है हम लोगों की बीमारियां बढ़ती ही रहेगी। एंड टॉयलेट से ज्यादा बीमारी फैलने की जगह दुनिया में कोई नहीं है, राइट। हम तो जो हमारी ग्रीन स्कूल होती है उसमें टॉयलेट इस तरह से बनाते हैं कि सूर्य की लाइट कम से कम 2 घंटे तक सूर्य का प्रकाश वहां रहे, तो वो सन सैनिटाइज हो जाता है, फिर वहां से बीमारी किसी और को नहीं लगती। अगर नहीं है तो कम से कम आपको क्लीन टॉयलेट बहुत जरूरी है, और टॉयलेट में जो क्लीनर है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। केमिकल होंगे तो और कोई बीमारी नहीं। सो प्लीज यूज द इको फ्रेंडली क्लीनर इन द टॉयलेट, राइट। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। ये सिंपल है। तीसरा जो है, आप एक बस अगर किसी स्कूल की निकलती है बच्चों को लेके तो 500 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो 1 किलोमीटर छोड़ती है। अगर 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना, 50-60 किलोमीटर हो तो आप कितना किलोग्राम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे उसी से जो है, कई बार देखेंगे बच्चे जो है बस में वो लोग शांत हो जाते हैं या उनको कंफर्ट नहीं होता, क्योंकि जो बस का धुआं सीधा उन्हें पे आता है। तो हमको ये लगता है कि हम लोग आरामदायक ढंग से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उतना आरामदायक होता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आपके बच्चों को कई बार क्या नाम है बेभान कर देता है। सो आई विश दैट कि जितना जो भी ट्रांसपोर्ट हो, कम्यूटिंग सिस्टम हो, दैट शुड बी इको फ्रेंडली। उसका पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक या सीएनजी बसेस इज द बेस्ट वे। बच्चों के लिए साइकिल से अच्छी कोई चीज नहीं है। जितना हो सके साइकिल का इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल जो रोड सेफ नहीं है, अगर बस का इस्तेमाल करते हैं या वैन का इस्तेमाल करते हैं, इट शुड बी इको फ्रेंडली। इसी से आपका लर्निंग आउटकम अच्छा है। उसके बाद है वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट। हमें कोई राइट नहीं है कि हमारा वेस्ट जो है लैंडफिल पे जाए, म्युनिसिपैलिटी आए और हमारी गंदगी को ले जाए। We have to recycle everywhere. वैसे तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। You have to reuse everything, right? अगर है भी तो उसको आप कंपोस्ट करें या रिसाइकल करें, उसको लैंडफिल में नहीं भेजें। क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी जगह नहीं है शहरों के पास कि लैंडफिल में आपको वेस्ट है। तो कंपोस्टिंग किट होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं तो किसी रूप में रिसाइकलिंग, जैसे आपका प्लास्टिक है कहीं भी आपके, तो उसका धागे बना लो, उसका फूट बैग बना लो। हम तो वही करते हैं स्कूलों में, उसको बाहर नहीं भेजते। चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भी रिसाइकल कर देते हैं। सो रीयूज इट एज मच यू कैन एंड मिनिमाइज योर इम्पैक्ट ऑन द लैंडफिल। कचरे के भंडार पे आपका योगदान तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आपका योगदान देश के निर्माण में होना चाहिए। कचरे के पहाड़ के निर्माण में तो योगदान नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में देखते होंगे बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, तो दिल्ली वालों का योगदान ऐसे। तो हम चाहते हैं कि किसी और शहर को दिल्ली ना बनने दिया जाए, राइट। सो यू हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट जुडिशियसली एंड यूज इट इन द सेफर वे, ताकि उसका पर्यावरण पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब तीसरा आता है यूनिफॉर्म। जैसे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, आपने पहने हुए, अगर आपने पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए, किसी भी दिन आप पॉलिस्टर के कपड़े पहन के आइए, उस दिन आपको पानी ज्यादा पीना पड़ता है। जिस दिन आप कॉटन के कपड़े पहन के आते हैं उस दिन पानी कम पीना, क्योंकि कॉटन आपकी बॉडी को ऑक्सीजन को डायरेक्ट सप्लाई करती है। आपकी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैंने पॉलिस्टर पहन लिया, टाई पहन लिया, तो ऑक्सीजन मेरे शरीर में एटमॉस्फेयर से नहीं जा रही है, तो आई नीड टू ड्रिंक मोर।
सो अगर बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो इको फ्रेंडली नहीं है तो लर्निंग आउटकम में 20% का इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे को पसीना होता है, इचिंग होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए प्लीज ट्राई टू यूज इको फ्रेंडली मटेरियल इन द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में जब भी आउटसोर्स करें तो हम सबको भी कॉटन के ही पहनने चाहिए, राइट। एंड जो भी इनकेस कहीं पॉलिस्टर वाला है तो उसको रिसाइकल करो, उसका कुछ क्या नाम है बैग बना दो, कुछ भी होगा, लेकिन उसको लैंडफिल में मत भेजो। सो प्लीज सी दैट कि विदाउट इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म वी कैन नॉट अचीव द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। ये सब चीज आपके टैलेंट के अलावा बच्चे के टैलेंट के पे प्रभाव इसका पड़ता है। कई बार आपको मैं अच्छा टीचर हूँ, स्टूडेंट भी अच्छा है, लेकिन बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके अलावा कुछ और सी जवाब रहा उसमें। ये सब चीज अगर इसका आपने समाधान कर लिया तो आप और आपके टैलेंट का देश के निर्माण में योगदान हो सकता है। तीसरा है ग्रीन टीचर। सो ग्रीन टीचर हमने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, 1 साल का प्रोग्राम है। इसको हम लोग इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क दोनों के साथ कराते हैं। उसका जो कोर्स का ऑथर मैं हूँ, सर्टिफिकेट लोग देते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं, वो लोग देते हैं। सो ग्रीन टीचर का 1 साल का कोर्स होता है और ग्रीन टीचर को किसी भी स्कूल में, ग्रीन स्कूल में कन्वेंशनल टीचर से 20% ज्यादा सैलरी मिलती है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ग्रीन टीचर स्कूल के बहुत सारे रिसोर्सेज को बचाता है। अगर आपका स्कूल ग्रीन स्कूल है तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको 70% कम आता है। आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, पानी का बिल कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का बिल कम हो जाएगा, स्टेशनरी का बिल कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज का आपका कम हो जाएगा। तो वो पैसा आप किसी और जगह लगा सकते हैं। तो जो पैसा स्कूल इसमें बचाती है उसमें 20% क्या नाम है टीचर को कंपनसेट करता है। तो ग्रीन टीचर का मतलब जो टीचर हर चैप्टर को नेचर से कनेक्ट करता है। मैं जैसे गणित की बात करता हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट शेप एंड साइज एंड नंबर्स। मैथ्स तो इसी पे 100% मैक्सिमम, 0 इज द मिनिमम, इससे ज्यादा मैथ्स कुछ नहीं। उसके लिए हमने इतने सारे फॉर्मूला बनाए हैं, इतने सारे प्रैक्टिस बनाए हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं सीखते। अगर आप सिंपली बच्चे को ग्राउंड में ले जाओ, मतलब 20-50 बच्चे हैं, तो हर बच्चा डिफरेंट शेप ड्रॉ करेगा। कोई सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो उसका चॉइस है। उस हर एक सर्कल में डिफरेंट टाइप के ग्रेन डालेगा, किसी ने 5 डाले, 10 डाले, 30 डाले। फिर जैसा आपका कैंपस है, पक्षी आएंगे, पक्षी दाने को ले जाएंगे। उसके बाद बच्चा पूरा रिव्यू करेगा, कौन से शेप में कौन सा ग्रेन कितने नंबर ले गए, कितने बच्चे। उस प्रोसेस में उसको पूरा मैथमेटिक्स आ जाए। उसके बाद उसको क्लासरूम में ले जाओ, उसको फटाफट समझ में समझ। वी कॉल दैट स्पीडी लर्निंग। एजुकेशन में 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता कंटेंट, दूसरा होता एक्सपीरियंस। कंटेंट में टेक्स्ट और एक्सपीरियंस में लेबोरेटरी। Without experience, you cannot learn everything. So, experiential learning is compulsory. Without experiencing the nature, you cannot learn the nature. So, you need to experience the nature. You need to experience the education. Education has a solution for everything on this planet. अगर मैं खुद को शिक्षक बताता हूं और मेरे पास समाधान नहीं है तो मैं शिक्षक किस बात का? Teachers means a set of solutions, set of inspiration, set of motivation. जैसे शिक्षक के पास जाते हैं, शिक्षक आशीर्वाद बोलता, बेटा तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा, राइट? सो टीचर मीन्स ए सेट ऑफ सॉल्यूशन, उसके पास दुनिया के हर चीज का समाधान होता है। तो ये जो शिक्षक है, ग्रीन टीचर है, इज द होल न्यू ब्रीड ऑफ नेचर एजुकेटर्स। ये प्रकृति के अपने शिक्षक हैं जो प्रकृति की रक्षा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ग्रीन करिकुलम। ग्रीन करिकुलम का मतलब है कि जैसा एनसीईआरटी का करिकुलम है, हर एक चैप्टर को जब हम लोग नेचर से कनेक्ट करते हैं तो उसको ग्रीन करिकुलम कहते हैं। हमने 1 से 8 के लिए पूरा बनाया हुआ और हमारे मैक्सिमम ग्रीन स्कूल में वही पढ़ाया जाता है। उससे लर्निंग आउटकम 100%।
तीसरा ग्रीन इंक्यूबेशन सेंटर। जब तक इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होगा तब तक लर्निंग आउटकम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के माइंड में कुछ भी अच्छा आइडिया आ सकता है, उसके लिए आपको उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। बुक के पे इतनी स्पेस नहीं होती है कि बच्चा हर चीज का समाधान बुक से मिल सके, वो कुछ करके देखना चाहता है। उसके लिए क्या चाहिए? इंक्यूबेशन सेंटर। लेट स्टूडेंट ट्राई हिज और हर आइडियाज, आइदर गुड और बैड। एंड अगर इंक्यूबेशन आपका अच्छा है तो लर्निंग आउटकम 100% अच्छा होगा। सो विदाउट इनोवेशन वी कैन नॉट डिफाइन एजुकेशन। इनोवेशन का नाम एजुकेशन है, राइट? गेम्स। अब हम लोग, हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सा गेम है फेमस? क्रिकेट। सो क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया में ऐसे गेम है जो प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। These two games are for entertainment and excitement. चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया, किसने लगाया तेरे को? वो घर में उछल रहा है, he is not involved, किसी को पढ़ी भी नहीं, उसके पड़ोसी भी नहीं पता, right? So these games require huge amount of energy, huge space, बहुत ज्यादा लाइटिंग चाहिए। अभी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, 1 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन उनका कार्बन इमिशन कितना है? कितनी गाड़ियां लेके आते हैं, कितना प्लास्टिक लेके आते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ के जाते हैं। तो असर किसका होता है? आजू बाजू के रहने वाले। सो ऑलवेज प्रमोट द इंडिजिनियस गेम। इंडिजिनियस गेम में कभी भी आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। खो कबड्डी खेलने के लिए आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, और ये प्रकृति की अपनी गेम है जो हर एक प्रदेश के अलग है, हर एक लोकेलिटी की अलग है। अगर आप वो गेम प्रमोट करते हैं तो आप स्थानीय प्रकृति को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सो ऑलवेज प्रमोट इंडिजिनियस गेम्स, लोकल गेम्स है, उन्हीं को प्रमोट करेंगे तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। इंडिजिनियस गेम से अच्छा फिटनेस का कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि वो लोकल है, वो लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, वो परंपरागत है। इसलिए instead of cricket and this so-called game, and please promote the indigenous game that has no impact on the local environment. तीसरा है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। हम लोग स्कूलों का करते हैं, हम लोग उसको सर्टिफाई करते हैं कि आपका स्कूल ग्रीन है नहीं। तो उसमें सबसे पहले तो आता है आपका स्पेस, बिल्ट अप स्पेस। जो भी बिल्डिंग बनी है, बिल्ट अप स्पेस है, क्या संस्था उसका न्यायपूर्ण उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही। कई बार बच्चे लाइब्रेरी और लेबोरेटरी का कम से कम उपयोग करते हैं। अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो अगर वो बिल्ट अप स्पेस नहीं होता तो वहां पर 4 पेड़ खड़े होते, हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे होते। तो जो भी बिल्ट अप स्पेस है उसका न्यायपूर्ण उपयोग करें, और उसका लैंडस्केपिंग अच्छा होना चाहिए ताकि स्थानीय प्रकृति पे उसका कोई दुष्प्रभाव न हो। तीसरा आपका एनर्जी सोर्सिंग, एनर्जी यूजेज, वाटर सोर्सिंग, वाटर यूजेज, एयर क्वालिटी कितनी है, क्यों है, और आपकी बायोडाइवर्सिटी, और आपका हेल्थ एंड हाइजीन। इस चीज का हम लोग ऑडिट करते हैं, इस रिपोर्ट आपको देते हैं, और इस पे आप डिसाइड करते हैं कि यू आर ग्रीन और नॉट। तो प्रकार प्राकृतिक संसाधनों पे आपका प्रभाव क्या है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस का, उसको हम लोग ग्रीन स्कूल, ग्रीन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और जो ग्रीन यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा मैंडेटरी है कि जो भी कोर्स यूनिवर्सिटी चलाए उसमें 10 क्रेडिट का कोर्स इन्वायरमेंट होना कंपलसरी है। चाहे आप एजुकेशन पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो, ह्यूमैनिटीज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन 10 क्रेडिट का इन्वायरमेंट कोर्स जरूरी है, चाहे यूजी, पीजी, डॉक्टर लेवल। एंड स्कूल में भी कंपलसरी है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन मस्ट बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन। तीसरा है व्हाट इट इंक्लूड। तो मैंने बता दिया है कि क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। ऑडिट में हम लोग किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं। तीसरा है व्हाई शुड एवरी स्कूल गो ग्रीन। हमने बता दिया कि टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड टू मेक द planet safe from the climate change, every school should go.
ग्रीन, देयर इज नो वे अदर वे। फिर तीसरा है कि भाई ये ग्रीन स्कूल में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कि आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनानी पड़ेगी, पाइप लाने पड़ेंगे, कंपोस्ट पिट बनानी पड़ेंगे, रिसाइकलिंग का पूरा मैकेनिज्म सेट करना पड़े, देयर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। जो सरकारी स्कूल है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अपने बजट का 10% का 3 साल तक जो है ग्रीन पे इन्वेस्ट करो। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें हम लोग बच्चों को बोलते हैं यू हैव टू पे 1% मोर। अगर आपकी स्कूल की फीस 100 रुपए है तो 1 रुपए आप और ऐड कीजिए तो उससे आपका स्कूल ग्रीन हो जाए। सो एवरीबॉडी बिकम स्टेक होल्डर, और जब सबका योगदान होता है तो स्कूल ग्रीन हो जाती है। तीसरा है बेनिफिट ऑफ ग्रीन स्कूल के, तो बहुत सारे बेनिफिट है उसमें लिखे हैं, बट बेनिफिट है दैट ग्रीन स्कूल के बच्चे बीमार नहीं पड़ते। अगर हेल्दी रहेंगे तो उनका भविष्य भी अच्छा रहेगा। आज हम लोग अभी स्टाफ रूम में चर्चा, प्रिंसिपल साहब के रूम में चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। तो दोनों चीज नहीं हो सकती, जो शिक्षित होता है वो बेरोजगार नहीं होता, और जो बेरोजगार होता है वो नहीं होता। अब सर्टिफिकेट होना वो अलग बात है। सो अगर हम लोग शिक्षित हैं तो हमारे पास समाधान है, हम लोग बेरोजगार कभी हो ही नहीं सकते। और भारत के बच्चों में जितना टैलेंट है वो दुनिया के किसी बच्चों में नहीं, और भारत के शिक्षक जितने सम्मानित दुनिया में है किसी देश के शिक्षक है, क्योंकि भारत के शिक्षकों के पास इमोशन है जो अन्य देशों में मिसिंग पार्ट है। वी डील विद द हार्ट, दे डील विद द हेड। हम लोग बच्चों के साथ हार्ट से डील करते हैं और पश्चिम वाले हेड से डील करते हैं। एंड व्हेन यू यूज हार्ट वी कैन विन द हेड। रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन मैंने बता दिया है कि रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन मींस दैट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट। अगर जो भी संस्था दो चीजों की जवाबदारी लेती है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तरदायी शिक्षा। शिक्षा को उत्तरदायी होना चाहिए। अगर आपने पानी की 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल ली है तो उसमें पानी तो होना चाहिए, और अगर आपने डिग्री ली है तो आपको नौकरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलती। इसका मतलब उत्तरदायित्व की कमी। और जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी वो उत्तरदायी थी। हमारे जितने भी गोत्र सिस्टम है वो गुरु से आए हुए। हमारे संस्कृति में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। टीचर है नो बाउंड्री, शिक्षा की कोई बाउंड्री नहीं, इसलिए हम लोग मोर देन 40 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार तो 1 इंच अगर एलओसी इधर उधर हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो बाउंड्री सरकार की होती है। एंड वी बिलीव दैट द लॉ ऑफ नेचर इज द ग्रेटर देन लॉ ऑफ द लैंड। प्रकृति का जो संविधान है वो देश के संविधान से बड़ा है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस देश का संविधान प्रकृति के संविधान का सम्मान नहीं करता उस देश में सुख समृद्धि नहीं है। और संविधान विश्व के अनेक देशों में अपनी नीड और ग्रीड, अपनी जरूरत और लालच के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन प्रकृति का संविधान मानव जाति के कल्याण के लिए। अगर हम लोग उसको अपनाते हैं तो देश का संविधान ऑटोमेटिक अपना। सो लॉ ऑफ नेचर इज सुप्रीम द लॉ ऑफ लैंड, एंड बिकॉज लॉ ऑफ नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर। भारत का संविधान भारत में ही लागू होता है, प्रकृति का संविधान हर देश में लागू होता है। सो ऑलवेज मेक नेचर फर्स्ट। नेचर इज द सुप्रीम लीडर एंड सुप्रीम गॉड। सभी देवताओं से बड़ा देवता है प्रकृति। प्रकृति है तो भी हम लोग देवता को मानते हैं, प्रकृति नहीं हो तो देवता भी नहीं हो सकता। सो बिलीव इन नेचर, लॉ ऑफ नेचर, in learning practices. I am sure that you will become excellent teachers. Teaching is one of the best professions, and we have to make it more best again. हमारी जनरेशन के पास ये जवाबदारी, हमसे पहले की जो जनरेशन थे वो हमारे जो शिक्षक है वो इसलिए शिक्षक बने कि वो इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, इसलिए शिक्षक बने। लेकिन हम पहले शिक्षक बने, उसके बाद शिक्षक नहीं बन पाए तो इंजीनियर बने, शिक्षक नहीं बन पाए तो डॉक्टर बनेंगे।
right? Because teacher create every profession. शिक्षक ही सारे प्रोफेशनों को बनाता है और शिक्षक से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं. टीचर इज नेक्स्ट टू द गॉड. हमारे तो संस्कारों में कहा गया है कि गुरु जो है वो देव से भी बड़ा होता है, राइट? सो हमको उस ग्लोरी को वापस लाना है. जो कहीं पर किसी भी क्षेत्र में अगर शिक्षक के प्रति सम्मान कम हुआ तो उसके जवाबदार शिक्षक है, और उस गौरव को वापस लाना भी हमारी ही जवाबदारी. So you must take your oath today कि हम लोग अपनी ग्लोरी को वापस लाएं. We'll bring back better, right? हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस लाएंगे और गुरु के नाम से हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी जाने जाएंगे. हम तो उनके वंशज हैं, हम ईश्वर के अपने संतानें हैं, हम लोग महान गुरुओं के संतान हैं. हम कमजोर कभी हो ही नहीं सकते. हमारे हनुमान जी, तब भी हनुमान जी थे जब उनको राम जी नहीं मिले थे, तब भी उनके पास उतनी शक्तियां थी, लेकिन राम जी ने उनको शक्तियां जगाई. हनुमान जी को मैं तो शक्तिशाली हूं, हमारे में बहुत शक्तियां हैं, पर हम खाली जगाने की जरूरत है. एंड आई एम श्योर दैट वी विल चेंज द वर्ल्ड एंड वी विल सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द रिस्पांसिबल एजुकेशन, राइट? तीसरा, हम लोग मेंटर, कई स्कूलों के लिए हम लोग मेंटर देते हैं. जो स्कूल स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हम लोग स्पेशल टीचर देते हैं जो लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करता है. उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल मेंटर बोलते हैं या सुपर गुरु बोलते हैं. तो हम लोग स्कूलों के साथ काम करते हैं. अब हम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस है जो 24 सितंबर को हो रही है न्यूयॉर्क में. ये हमारी छठी कॉन्फ्रेंस है. अराउंड 40-50 कंट्री पार्टिसिपेट इन दैट एंड वी टेक डिसीजन फॉर हाउ टू इम्प्लीमेंट एजुकेशन इन नेक्स्ट लेवल. इसके अलावा हमने इंडो अमेरिकन ग्रीन स्कूल नेटवर्क का भी इस बार लॉन्च कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर दैट इंडिया एंड अमेरिका व्हेन वी बिकम टुगेदर वी कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. दिस वाज माय summing up. Thank you so much. Thank you for inviting me and having a good audience. I'm sure that I'll be useful in future also. Thank you so much. Thank you, sir. Now the house is open. अगर आपकी कुछ queries हैं, आप सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज. साथियों, हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर रायश्री शर्मा सर, किसी काम से उनकी बड़ी इच्छा थी इस प्रोग्राम में रहने की और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रोग्राम हुआ, लेकिन किसी विशेष काम से उनको जयपुर जाना पड़ा. अभी सर हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं. सर, हम चाहते हैं कि आप अगर 2 मिनट कीजिए, बोलिए प्लीज. थैंक यू आनंद जी, मुझे अवसर देने के लिए. सर्वप्रथम मैं आज के हमारे स्पीकर रावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इन स्कूल के कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी दिशाएं दिखाई हैं. और मेरा विश्वास है जो बातें आपने कही हैं हम उनको अमल में लाएंगे. हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी अमल में ला रहे हैं और उनको लार्जर स्केल पर हम अमल में लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है. मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि सर, आपको अगर समय मिलता है तो एक बार और हमें अवसर दें ताकि हम जो बहुत सारी चीजें अभी आपसे जानना चाह रहे हैं वो इस 1 घंटे 1.5 घंटे के व्याख्यान में संभवतः प्रायोगिक रूप से हम न उनको प्राप्त कर पाए हों, मगर जब आप हमें पूरा दिन देंगे तो हम वास्तव में जो आप चाह रहे हैं हम भी एक्चुअली वही चाह रहे हैं. हमने कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स अपने संस्थान में लिए हैं. ग्रीन, जब आपका लेक्चर हुआ था ग्रीनिंग एनसीईआरटी कैंपस के बारे में, तो उसी समय से हमने बहुत सारी चीजें शुरू की हैं और हम लोगों ने अब ये प्रण कर लिया है कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हम ऐसी गतिविधियां आवश्यक रूप से करेंगे जिनसे हम ग्रीन आरआई कैंपस के स्वप्न को साकार कर पाए. पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना समय दिया हमें. बहुत बहुत धन्यवाद.
आनंद जी का, डीन साहब का और सभी विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों का, उन्होंने अपना समय देकर इसमें भाग लिया। सर, आपको ये विदित होगा कि हमारे साथ में जो नॉर्दर्न रीजन के SC/RT से भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे बहुत सारी जानकारी चाहते हैं। तो अगर आप अनुमति देंगे तो हम आपके कॉन्टेक्ट्स को उनको शेयर कर देंगे, ताकि ये जो आप एक मिशन मोड में इस चीज को लेके चल रहे हैं, ग्रीनिंग जो स्कूल कॉन्सेप्ट को, उसको हम भी अपने, चाहे वो करिकुलम की एस्पेक्ट है, चाहे कैंपस की एस्पेक्ट है, चाहे टीचर की एस्पेक्ट है, चाहे अन्य एस्पेक्ट हैं, सभी में उसको लागू कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। ग्रीन इंक्यूबेशन सेंटर ये है कि जो भी इनोवेशन बच्चों के माइंड में हो, तो इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसे आइडिया को एक पावर मिलती है, उन लोगों तक जाता है और अच्छा होता है। इट गोes there. Incubation center means it could testing the your ideas. Thanks. Right. Yes. Sir, सर मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जो नेटिव प्लांट है वही ज्यादा सरवाइव करते हैं। तो स्थानीय प्रजाति के अगर आप प्लांट लगाएंगे तो सर्वाइव भी करेंगे, प्रॉस्पर भी करेंगे, क्योंकि वो स्थानीय वातावरण के अनुकूल है। और तीसरा, वो सबसे कम पानी का उपयोग ऐसे प्लांट को जरूरत पड़ती है। तो आई एम श्योर दैट कि जो नेटिव प्लांट है, नेटिव फ्लोरा है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। यस 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 सर, अब जो प्लांट यहाँ के नहीं है, अगर उनको आप ग्रो करेंगे तो इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ अटेंशन। उसके बावजूद भी सक्सेस रेशियो कम है। तो हम जो जिस वातावरण में जो पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं तो उन्हीं को लगाएं तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि फिर ऑर्नामेंटल बाहर से लाना, इट अल्टीमेटली इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द लोकल एनवायरनमेंट। तो प्लांट हमको देखने के लिए नहीं, अपने को अपने हेल्थ के लिए, अपने वातावरण के लिए लगाने पड़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स। प्लीज। जैसा आपने स्पोर्ट्स का कहा था कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो वो तो सर एंटरटेनमेंट बेसिस पर अगर कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड वाइड बेसिस पर कर रहे हैं, तो हो रहा है। इंडिजिनस गेम हो, चाहे क्रिकेट फुटबॉल या ग्राउंड पर भी खेलते हैं, तो उससे कैसे ग्रीन इनिशिएटिव नेगेटिव? सर, कोई भी गेम को जब हम लोग एक्सेसिव एनर्जी का उपयोग करते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करते हैं, तो उससे कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप नेचुरल लाइट में खेल रहे हैं, स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। So anything that is using excessive energy, excessive water, excessive space, that is the impact of the local environment. That is it. Yes sir, please. जैसे कि आपने बताई थी कि हम लोग अपने क्लासरूम को 2 डिग्री टेम्परेचर से कम रखते हैं और वेंटिलेशन से प्रॉपर रखते हैं। हम कैसे कर पाएंगे कि वेंटिलेशन भी और क्रॉस वेंटिलेशन होता है सर, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता तो टेम्परेचर ऊपर से कई बार ज्यादा हो जाता है इंडोर। सो क्रॉस वेंटिलेशन ऊपर से टेम्परेचर को इंक्रीज और मेंटेन करने का एयर फ्लो होता है, तो टेम्परेचर, जैसे आप सड़क पे खड़े हैं, फिर पेड़ के नीचे आ जाते हैं तो आपको गर्मी कम लगती है। तो उतने तरह का सेम सिद्धांत है, सिंपल फिजिक्स है। So thank you very much. I think there are no more queries. So thank you so much for listening me, and I'm sure that I will be useful in coming. थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि हमारे संस्थान की तरफ से सर को मोमेंटो देकर हम अपने आप को सम्मानित करें। सर, एक स्मृति चिन्ह मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर।
सर, साथियों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि 40 साल पहले बनारस में मैं एक बच्चे को रामनगर फोर्ट दिखाने ले गया था। बच्चा भी एक्साइटेड था और मुझे भी बड़ी दिलचस्पी थी कि बच्चे को किला दिखा दिया जाए और उसके बारे में उसको कुछ चीजें बता दी जाए। किला को दिखाते वक्त संयोग ऐसा था, सर्दियों का दिन था, महाराज बनारस अपने लान में बैठे हुए थे। उनको देख के थोड़ा सा मुझे भी जिज्ञासा हुई। मैंने उस बच्चे को कहा कि बबलू देख, महाराज बनारस बैठे हुए। तो उसने देखा, कहा कि ये तो आदमी और उसका कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था। उन्हें बड़े सिंपल लगे, कहा कि ये तो आदमी। वैसे ही आज मैं जब रावत जी को इंट्रोड्यूस करा रहा था तो कई चीजें बताई कि ही इज originator of Green School and Green University and member of this and that and addressed so many conferences in Harvard, Oxford and so on. इससे अंदाजा ये लग रहा था कि जो लेक्चर होगा वो बड़ा हाई फाई होगा, लेकिन उन्होंने जिस चीजों को एलोबरेट किया और ग्रीन स्कूल, ग्रीन टीचर, ग्रीन करिकुलम और ग्रीन गेम्स और इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी, तो इतना अच्छा जैसे बिल्कुल हम लोग लेमैन की तरह से उसको आत्मसात करते जा रहे थे। और सर आपके उद्बोधन में बड़ी अच्छी चीजें, मैं तो छोटी छोटी चीजों से चिराग जला लेता है। आपने चर्चा करते हुए कहा कि किस तरह से हम प्रकृति से और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। ये तो हमारी एनईपी 2020 भी कहती है कि हमें हर व्यक्ति को, हर बच्चे को या जो हमारा स्टेक होल्डर है उसको अपनी प्रकृति से, अपने संस्कृति से जुड़ना होगा और इसी के माध्यम से उसकी शिक्षा की बुनियाद भी प्रकृति और संस्कृति से जुड़कर ही हो सकती है। तो और प्रकृति और संस्कृति का जितना बेहतरीन इस्तेमाल और जितना बेहतरीन संरक्षण हम कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए। बीच में आया था रेन गो अवे। अब स्कूलों का निजाम ऐसा है कि बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती है, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अरे जानी शुगर खाए या न खाए, इससे ना तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कुछ फर्क पड़ने वाला है और ना तो हम अपनी प्रकृति के नजदीक जाते हैं, ना अपनी संस्कृति के नजदीक जाते हैं। सर हम लोग तो जब ग्रीन करिकुलम की बात होती है, मैं तो क्योंकि उर्दू का विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत सी उल्टी सीधी चीजें बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। हम लोग कभी जीवन में आज तक बरसात को गो अवे नहीं कहा, उसका अगर वेलकम किया है या उससे कभी कभी चिढ़ भी है। चिढ़ इसलिए होती है कि जैसे बरसात बहुत अच्छी चीज होती है, बरसात का इंतजार भी करते हैं। हमारे जो मानसून विज्ञानी है वो तारीफ बता देते हैं कि मानसून आ रहा है, लेकिन मानसून का बरसात आती है। अब बरसात इस वक्त हम लोग जब बिल्डिंगों में बैठ के चर्चा करते हैं बरसात, तो बरसात बड़ी खुशगवार होती है, लेकिन जिनके घर बच्चे होते हैं तो कहते हैं घर में है मेहमान, सारा छत टपकता है मेरा, पानी पानी हो रही है आबरू बरसात, तो फिर बरसात खराब भी लगती है। और कभी कभी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम बरसात से सिर्फ ग्रीनरी की उम्मीद नहीं करते। वो कहा गया है कि हम ये समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। खाली पानी बरसात तो फिर सारा मजा ही खराब हो गया, थोड़ी सी शराब भी पड़ेगी। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। हम लिटरेचर वाले तो नेचर के भी करीब होते हैं और कल्चर के भी करीब होते हैं, प्रकृति के भी करीब और संस्कृति के भी करीब। और शायद उनका काम भी यही है कि अपने विद्यार्थियों को
जब वो मैथमेटिक्स के क्लास से आते हैं, साइंस के क्लास से आते हैं, तो जहाँ थोड़ा डेविएशन होता है फिर उनको खींच के अपनी संस्कृति के पास ले आए और प्रकृति के पास ले आए। तो ये आज का जो इंटरेक्शन था, जो डिस्कशन था सर, बहुत दिनों के बाद इतने सिंपल तरीके से बगैर किसी जार्गन के, और मुझे अंदाजा था कि कुछ भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल होंगे, लेकिन आनंद आ गया। मेरा ख्याल है कि आप सभी को आनंद आया होगा। कम से कम बोर होने का कोई भी मौका इसमें नहीं छोड़ा। और मैं तो समझता हूँ कि रावत साहब की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें होगी कि वो हमारे इंस्टीट्यूट को भी ग्रीन इंस्टीट्यूट बना दें। भविष्य में उनका सानिध्य और सहयोग हमको मिलता रहा। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि आपका इंग्रजी शर्मा जी वेट कर रहे थे, लेकिन मैं खुद भी आपकी व्यक्तित्व से और आपका जो इंटरेक्शन था उससे बहुत प्रभावित हुआ, और मैं समझता हूँ कि हमारी फैकल्टी भी उससे बहुत प्रभावित हुई। मैं आपका फिर से एक बार मैं प्रोग्राम समापन के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और हमारे संस्थान की प्राचार्य प्रोफेसर सत्यवीर शर्मा जी, संस्थान के प्रभारी प्राचार्य अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर राजेश मिश्र जी, गणित विज्ञान शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राम पालिक जी, विस्तार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आर्य जी, आज के हमारे ओजस्वी वक्ता और ग्रीन स्कूल और ग्रीन यूनिवर्सिटी के प्रणेता डॉक्टर वीरेंद्र राव जी, संस्थान के संकाय सदस्य, संस्था परिवार के हमारे सदस्यजन, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी ओर से, परिषद की ओर से, संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, और अभी इससे पहले का जो पूरा महीना था वो भगवान शिव को समर्पित था। मैं अपने ही इस विभाग के वरिष्ठ साथी प्रोफेसर नगेंद्र सिंह जी को फोन करना चाहूंगा, और बहुत अच्छी बात वो कहा करते हैं कि ये जो समन्वय है ये पूरा भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है, और शिव परिवार में अगर नंदी और शेर अकेले खड़े हो जाए तो संभवतः कोहराम मच जाएगा। ऐसे ही शिव परिवार में चूहा और सांप अगर अलग अलग मिल जाए तो हिंसा हो जाएगी एक दूसरे पर वो पूरा परिवार एक समन्वय लेकर चलता है। ये समन्वय हमारे साथ प्रकृति के साथ हमेशा रहा है, और ये प्रकृति का जो समन्वय है आज आपने बहुत अच्छे से अपनी भाषा में इसको हमारे को समझाया, आपको बताया। और जैसा कि हमारे अधिष्ठाता महोदय ने भी कहा है कि आपका ये सहयोग, अकादमिक सहयोग, आपके मार्गदर्शन हमें समय समय मिलता रहेगा। बहुत बड़ी बात आपने संस्था के लिए कही, और शिक्षकों के सम्मान के लिए आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रकृति का जो कानून है वो शायद धरा के धरती के किसी भी कानून से बहुत बड़ा होता है, और इसलिए शिक्षक की महानता के लिए जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर एक बात कही भी गई है कि राजा होना और विद्वान होना एक जैसा नहीं है। स्वदेश पूज्यते राजा और विद्वान पूज्यते सर्वत्र। विद्वान की पूजा संभवतः इसीलिए सर्वत्र होती है। तो जो बाकी पूरी प्रकृति ही इस चीज को लेकर चलती है। हम सब जो वैदिक प्रार्थना करते हैं उसमें सारे प्रकृति के तत्व उसी में समाहित है। देव शांति, अंतरिक्ष भूमि शांति, पृथ्वी शांति, रावः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति। तो ये पूरी प्रकृति को शांति में रूप में हमने प्रकृति को स्वीकार किया है, और यही कारण है कि हमारी जो भारत की समृद्ध परंपरा है वो आदरणीय वीरेंद्र जी की ओजस्वी वाणी में आज प्रकट हुई। मैं संस्था परिवार की ओर से, परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं संस्थान की प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अवसर हमें दिया कि हम ऐसे विद्वान से परिचित हो सके, इनके साथ संवाद कर सके। विशेष रूप से आभार, धन्यवाद प्रोफेसर आनंद आर्य जी को, जो कि विस्तार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष है, और ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एमिनेंट स्कॉलर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है, मैं धन्यवाद देता हूँ विस्तार शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों को जिन्होंने इस सभागार में इस जो है व्याख्यान का यहाँ पर आयोजन किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे यहाँ के जो दूसरे प्रशासनिक हमारा अमला है और हमारे जो लेखाधिकारी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के औपचारिक संचालन के लिए प्रशासनिक और आर्थिक सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ संस्था परिवार से पधारे हमारे संस्थान के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, शिक्षक गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित हुए और अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा में रखी। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
संस्थान के विद्यार्थियों का कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और एक ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व से हम परिचित हुए जिनके लिए हम पुनः एक बार जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कर्तव्य ध्वनि से आपका पुनः एक बार